Students, today we are going to discuss our third law, that is Avogadro's law. What it say? Actually, it states that volume of a gas is directly proportional to number of moles of a gas at constant temperature and pressure. So, if we say, it states that volume of a gas, volume of a given mass of a gas is directly proportional to is directly proportional to number of moles of gas at constant temperature and pressure. So what we can say, that volume is directly proportional to number of moles of a gas at constant temperature and pressure. Temperature, T for temperature and P for pressure. But since we know that number of moles is equal to given number of particles upon Avogadro's number. Here particle is given number of molecules of gas, given number of particles or molecules of a gas. So what we can say, that it is equal to the N upon Na. Na represent Avogadro's number and small n represents number of moles. So if we substitute number of moles, that is N is equal to number of molecules of a, N is here number of molecules of a gas upon Na. In above equation we get V is directly proportional to N upon Na. Or simply we can say that here N is directly proportional to molecules of a gas. Both of these relation will be carried out further in various questions. And the value of Na is here 6.023 into 10 raised to power 23. So now we will discuss our second law, that is Gay-Lussac law or Hamiltonian's law. So if we want to draw a graph between volume of a given gas and then the relation will come, the graph come out to be straight line. Okay. Now students, we are going to discuss our fourth law, that is Gay-Lussac law, or simply we can say Hamiltonian's pressure temperature law. Student, what it say? It states that the pressure exerted by a gas is directly proportional to absolute temperature.
So how we can define it or discuss it? It states that pressure exerted by the gas is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature while volume remaining constant of a given gas. Volume of a gas remains constant. So what we can say that it is pressure is directly proportional to temperature. Or what we can say that pressure upon temperature is equal to constant. Or we will say that P1 is the pressure at temperature T1. So if P1 is the pressure exerted by the gas at temperature T1, then if temperature is increased to temperature T2, then the pressure exerted by the gas is P2, then P1 by T1 is equal to P2 by T2. This relation will be used in various numericals. So if we want to draw the graph between pressure P and temperature T, then pressure versus temperature is straight line, whereas P by T upon temperature is parallel to the x-axis at constant volume. Both the graphs are at constant volume. Previously also we have discussed that the straight line graph will comes when there is a directly proportional relationship between the y-axis coordinates and the x-axis coordinates. Now we are going to discuss the ideal gas equation. What the ideal gas equation is? एक्चुअली बच्चे जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हर चीज को, आपकी हर क्वांटिटी को, वो प्रेशर का इफेक्ट, वो टेम्परेचर का इफेक्ट, वो आपका वॉल्यूम का इफेक्ट, वो नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट, वो हर चीज को रिलेट करती है। और आइडियल गैस इक्वेशन आई कहां से? हमने जो 4 लॉ हैं, जो हमारे 4 लॉ जो अभी हमने डिस्कस करे हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में और जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं, इन सभी को कंबाइन कर दिया। इन सभी लॉज को कंबाइन करने से जो इक्वेशन हम डिराइव कर पाए वो इक्वेशन थी आइडियल गैस इक्वेशन। एक्चुअली बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन कोई है नहीं,
लेकिन आइडियल गैस जैसा बिहेविंग गैसेस हमारे पास हैं, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो उसे उसके साथ रिलेट कर सके. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडियल गैस इक्वेशन नाउ. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडियल गैस इक्वेशन. So how can we define it? The ideal gas equation, it gives this simultaneous effect of pressure, temperature, number of moles, volume with all these quantities. So this equation, what we can say that the equation, बच्चे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके जितने भी नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, 12th क्लास में आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, वहां पर भी आइडियल गैस इक्वेशन का यूज होगा. कहीं ना कहीं आपके ऑस्मोटिक प्रेशर वाले कंसेप्ट को के साथ डील करते हो. तो ध्यान समझिए बच्चे, यहां से आपका एक प्रॉपर टॉपिक मींस प्रॉपर क्वेश्चंस यहां से बनने शुरू हो जाते हैं. अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पता है तो आप लगभग कई चैप्टर के साथ डील कर सकते हैं. आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपकी जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री है वो काफी हद तक आइडियल गैस इक्वेशन पे डिपेंड करती है. क्योंकि अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पता होगी तो कहीं ना कहीं आपको रियल गैस के बारे में नहीं पता होगा. तो डिस्कस करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से समझिए. द इक्वेशन विच गिव्स द साइमल्टेनियस गिव्स द simultaneous effect of pressure, temperature, and number of moles on volume of on the वॉल्यूम ऑफ गैस. जो इक्वेशन हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताए, टेम्परेचर बताए, नंबर ऑफ मोल्स बताए, किस पर? ऑन दी वॉल्यूम ऑफ गैस. कैसे डील करती है वॉल्यूम गैस? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कब? जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं. तो इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. देखो बच्चे, इसको हम डेरिवेशन करते हैं. इसका समझिए, डेरिवेशन बच्चे आपके दो टाइप से हैं. एक आपका डायरेक्ट है, एक आपका इनडायरेक्ट है. दोनों की ही हमें जरूरत है, ध्यान समझना. तो हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें क्या पता है, वॉल्यूम इज या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और सिंपली वी कैन से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हुई. तो आप लिख सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर T. फिर हमें बच्चे चार्ल्स लॉ क्या बताता है? चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमें क्या बताया? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो सिंपली वी कैन से एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर P, इक्वेशन 2. और बच्चे हमें एवोगैड्रोस लॉ क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, volume is directly proportional to number of moles of gas at constant temperature and pressure. Temperature and pressure. तो बच्चे अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें, सो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2
and 3, we get volume is directly proportional to 1 by pressure from equation 1, is directly proportional to temperature, is directly proportional to number of moles of gas. तो बच्चे हम यहां से क्या बता सकते हैं, हमारा यहां से क्या है, PV is directly proportional to NT. तो बच्चे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट R, जिसे हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं. तो क्या होती है बच्चे, PV is equal to nRT. या सिंपली पहले आप इसे समझिए, सिंपली आप RNT लिखती है और फिर बाद में इसको रीअरेंज करके हम क्या बोल सकते हैं, PV is equal to nRT. तो बच्चे आपकी यही आइडियल गैस इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा काम आने वाली, ध्यान समझना बच्चे. तो यहां पर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या किया था, एक R को इंट्रोड्यूस किया था. तो ध्यान रखिए इसे. हमारे जो काम आने वाली इक्वेशन है वो कौन सी बच्चे, आपके जो न्यूमेरिकल्स में जो यूज होने वाली है बहुत ज्यादा, वो क्या है, हमारी ये इक्वेशन है. R क्या बच्चे, आपका गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसकी वैल्यूज बच्चे हम आगे डिस्कस करेंगे. इसकी वैल्यूज प्रेशर और टेम्परेचर के साथ डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसे बाद में डिस्कस करते हैं. तो बच्चे जो ये तो हमारा फर्स्ट वे था डिराइव करने का. अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड वे. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड वे फॉर द डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. लेट्स सी. Let us consider a gas having volume V1 let us consider a gas having volume V1 at temperature T1 and pressure P1. तो बच्चे हमें पता है, तो हम क्या कह सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, let volume of a gas is changed from V1 to V2 on changing pressure from P1 to pressure P1 to P2. तो हमें ये पता है बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा लॉ काम करता है हमारा, बॉयल्स लॉ. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें क्या पता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लेकिन कब था बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. आप लोग चलो आगे देखो बच्चे से. हम इस इक्वेशन को यहां से V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, हमारी V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, P1 V1 बाय P2, और इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं. तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब की बार हम एट कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं. तो एट कांस्टेंट प्रेशर P2, at constant pressure P2, temperature changes from T1 to T2. तो बच्चे जैसे हम टेम्परेचर T1 से T2 जाते हैं तो हमें पता है हमारी क्या इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम
चेंज हो जाती है। कहां से कहां तक हम ये कह सकते हैं, एक काम करते हैं बच्चे, इस V1 को हम Vx ले लेते हैं, V1 से लेके V1 से Vx कर लेते हैं बच्चे से, और P1 से P2 कर लेते हैं। तो यहां से हमारी क्या हो जाएगी, Vx बन जाएगी, x सपोज करते हैं, इसे भी हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, देन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, तो बच्चे इस पॉइंट को करेक्ट कर लीजिए, मैंने V2 को Vx बना दिया, देन वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम Vx to V2। तो बच्चे हमें पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर कौन सा लॉ काम करता है, चार्ल्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हमें क्या पता है, Vx कब था बच्चे, आपका टेम्परेचर T1 पे था, और ये हमारा क्या बन गया, V2 बाई T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं बच्चे। तो अगर बच्चे हम यहां पर Vx की वैल्यू निकालें तो Vx की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे हमारी, Vx की वैल्यू बनेगी बच्चे हमारी, Vx इज इक्वल टू V2 बाई T2 इंटू T1। तो बच्चे इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम कहां पर सब्स्टिट्यूट करें, अपनी इक्वेशन 1, तो क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग the value of Vx from equation 2 to in 1 we get, क्या मिलता है बच्चे हमें, इसे अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगी बच्चे हमारी, V2 बाई T2 इंटू T1 इज इक्वल टू P1 बाई V1 अपॉन P2। तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, P1 V1 बाई P2 V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। हमें ये इक्वेशन यहां से मिलती है। इसे और फर्दर रीअरेंज करना चाहें तो हम क्या रीअरेंज कर सकते हैं बच्चे, इसके अंदर हम इसे और रीअरेंज करना चाहें तो और इसे क्या रीअरेंज कर सकते हैं, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये इक्वेशन बच्चे हमारे बहुत काम आती है, क्योंकि बच्चे दोनों इक्वेशन के अंदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, वो था आपका R, और जो हमने लगभग नेग्लेक्ट कर दिया है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम अबव इक्वेशन what we can say, from above equation we conclude that PV by T is equal to constant। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय T इज कांस्टेंट, और वो किसी कांस्टेंट K के इक्वल आ सकता है, यहाँ पे किसी कांस्टेंट K के इक्वल। और ऑन एक्सपेरिमेंटली व्हाट वी सी, ऑन एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चे बहुत सारे, उससे हमने एक रिलेशन और डिराइव किया। ऑन एक्सपेरिमेंटल इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो ये K की वैल्यू है बच्चे, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपकी N की है, N के डायरेक्टली है, और किसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वही स्पेशल हम R को है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और सिंपली व्हाट वी कैन से K इज इक्वल टू NR। तो हम इसे यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को, इक्वेशन 3 को अपनी इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से PV बाई T इज इक्वल टू NR। K की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर, यहां से हमें और क्या मिलता है, PV इज इक्वल टू
RT। यही हमारी जो हमने सिंपलेस्ट तरीके से डिराइव करी थी, ये वही इक्वेशन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अब बच्चे हमारे पास अब हमारी जो वैल्यूज रहेगी, जो हमारी दुविधा थी कि आर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो एक बार बच्चे इन आर की वैल्यूज को नोट करिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी, ध्यान रखना बच्चे, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। तो आर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो एक बार ध्यान से देखिए बच्चे, आर की वैल्यूज आपकी क्या क्या हो सकती हैं। आर इज इक्वल टू 0.0821। इन्हें हम डिराइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन्हें डिराइव करें। तो लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स। नेक्स्ट बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, 0.0831 लीटर बार। ये कब होंगी बच्चे आपकी, सेम टेम्परेचर केल्विन में ही होगा। ध्यान रखना बच्चे, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होगा, या फिर जो इसकी मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली वैल्यू बच्चे जो आपकी स्टैंडर्ड, वो आपकी यही होगी 8.314 जूल केल्विन। क्योंकि बच्चे आपकी इसी को हम क्या बोलते हैं, लीटर बार को क्या हमारी जूल, तो हमारी क्या हो जाएगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और हम इसे क्या बोल सकते हैं 8.314 न्यूटन मीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स की वैल्यू बच्चे आपकी। और क्या वैल्यू बन सकती है बच्चे आपकी, पास्कल के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू को डिराइव करना चाहे तो हमारी क्या बनेगी 8.314 इंटू 10⁻³ लीटर पास्कल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और एक बच्चे लास्ट वैल्यू आपकी, एक वैल्यू और है आपकी, क्या है 8.314 इंटू 10⁻⁷। अगर अर्ग्स में हमने वैल्यू यूज करी है केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक बच्ची आर की वैल्यू एक और भी होती है, अगर आपकी यही कैलोरी के अंदर होती है, किसके अंदर होती है बच्चे आपकी कैलोरी, तो आर की वैल्यू 2 भी होती है कैलोरी। अगर कैलोरी के अंदर अगर आपकी कैलोरी, ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे, अगर कैलोरी यूज करी गई है तो ये वैल्यू भी होती है आपकी। तो इसे ध्यान रखिए, आर की ये सभी वैल्यू आर की है, तो ध्यान से रखिए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बच्चे आपकी यूज होती है, या तो कैलोरी की डायरेक्ट रेयरली कभी होती है, वैसे तो ये फिजिक्स के अंदर ज्यादा यूज होती है आपकी। ये फिजिक्स के अंदर जो आर की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू बच्चे यही है, ध्यान रखना। आर बच्चे अभी तक आपने 2 जगह पढ़ा, ध्यान रखना, आर बच्चे आपने 2 जगह पढ़ा है। एक आपका रेडबर्ग कांस्टेंट होता है जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, वो आर, और ये वाला आर, ये आर क्या बच्चे आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दोनों दूर दूर तक इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। दोनों को हम आर से डिनोट करते हैं, काफी कंफ्यूजन होती है। तो बच्चे आज के लिए हमारे लिए यही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, और कुछ फर्दर रिलेशंस है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आज के लिए इतना ही है, काफी, थैंक यू।